میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم جھوٹے ہیں 50-50 لاکھ کا اگوان رکھیں پنچایت کے اندر، لگائیں پنچایت، جو جھوٹا ہوگا اس کے اوپر لگائیں. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں اس مافیا کے اندر کوئی بھی آواز اٹھانے والا نہیں ہے غریب بندے کی. ڈاکٹر صاحب میرے انصاف سے اگر آپ پریشان ہو جاتے ہیں تو جو 6 سے 7 مہینے میرے بچے، میری بیگم، میرا ماں باپ جس اذیت سے گزرا ہوگا، کیا اس کا ازالہ کر سکتے ہیں آپ؟ تو 30 کروڑ کے حساب سے انکم ٹیکس کتنا دیتے ہیں ہم، تو وہاں پہ بھی اب جائیں گے. لیکن اب اگر وہ اس غلطی کا اقرار کر لیتے ہیں تو کیا آپ کمپرومائز کر لیں گے ان کے ساتھ؟ ناظرین، دکھ اور سکھ، بیماری انسانی زندگی کا حصہ ہے. انسان جب بھی بیمار ہوتا ہے تو سب سے پہلا خیال جو ذہن میں آتا ہے وہ ڈاکٹر کا ہوتا ہے. یعنی کہ معاشرے میں ڈاکٹر کا جو روپ ہوتا ہے وہ ایک مسیحا کے طور پر جانا جاتا ہے. لیکن آج اس معاشرے میں ڈاکٹرز کے روپ میں کچھ کسائی بھی موجود ہیں. میرے ساتھ اس وقت ایک ایسے شہری موجود ہیں جو ڈاکٹرز کے روپ میں کسائی کا شکار ہوئے ہیں. میرے ساتھ ماجد صاحب موجود ہیں، میاں چنو کے جو شہری ہیں. بیماری کے باعث ایک نجی ہاسپٹل میں علاج کے لیے گئے اور ان کو ایک گردے سے ہاتھ دھونا پڑ گیا. ماجد صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ ایک نجی ہاسپٹل میں علاج کے لیے گئے، گردے سے ہاتھ دھونا پڑ گیا، معاملہ کیا تھا، بیماری کیا تھی، اور یہ سارا ماجرا آپ بتائیے گا کہ یہ سارا قصہ کیسے آپ کو گردے سے ہاتھ دھونا پڑا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو اسحاق بھائی آپ کا شکریہ، آپ میرے پاس پہنچے ہیں اور میری آواز کو اٹھا رہے ہیں تاکہ کسی بھی کا اور مسئلہ ہو وہ اپنی رائے پہنچا سکے حکام بالا تک. تو ایسا تھا کہ میں گردے میں تکلیف کے باعث سعید میڈیکیئر تلمبا روڈ میاں چنو اپریل رمضان شریف 2022 میں جاتا ہوں. تو میں ڈاکٹر حافظ نعیم صاحب کو چیک اپ کرواتا ہوں کہ مجھے یہ پین ہو رہی ہے، دیکھیں کیا مسئلہ ہے، اور یہ میری رپورٹ آئی الٹرا ساؤنڈ کی تو پتھری بتا رہے ہیں مجھے. تو وہ مجھے کہتے ہیں جی پتھری تو آپ کی تھوڑی سی بڑی ہے، آپ کو آپریشن کرنا پڑے گا. تو ایسا کریں منگل والے دن آ جائیں میرے پاس، میں آپ کا آپریشن کر دوں گا. تو منگل والے دن میں چلا جاتا ہوں ان کے پاس. تو یہ میرا آپریشن کرتے ہیں اور آپریشن کے 2 دن بعد یہ مجھے ڈسچارج کر دیتے ہیں. تو 2 دن بعد جب میں گھر پہنچتا ہوں تو اس سے 2 دن بعد جو میرے بیگ لگے ہوتے ہیں، ایک سائڈ پہ لگا ہوتا ہے کمر میں اور ایک فولس بیگ لگا ہوتا ہے. جو سائڈ پہ ڈرین والا کمر میں بیگ لگا ہوتا ہے جو عام طور پہ جس میں بلڈ آنا ہوتا ہے، اس میں یورین آنا شروع ہو جاتا ہے. تو میں پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتا ہوں، حالانکہ چل تو نہیں سکتا تھا لیکن بڑی مشکل سے پہنچ. تو ڈاکٹر صاحب حافظ نعیم صاحب ہی مجھے ملتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ میرا معاملہ ہے، یہ ڈرین میں یورین آ رہا ہے، یہ کیوں آ رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں یار تمہارا جسم تھوڑا سا وزنی ہے، تم موٹے ہو، ایسا ہو جاتا ہے. تو مجھے مطمئن کیا، میں اپنے گھر واپس آ گیا ہوں. اس سے 2-3 دن بعد میرا یورین زیادہ آنا شروع ہو گیا ہے. میں پھر جاتا ہوں ڈاکٹر صاحب کے پاس، تب بھی مجھے حافظ نعیم صاحب ملتے ہیں اور ان کے ہاسپٹل کے 1-2 اور بندے بھی ہوتے ہیں. مجھے کہتے ہیں یار تم شاید کروٹ لے کے سوتے ہو، کروٹ ایسے لیا کرو، کروٹ ایسے لو. مجھے انہوں نے جو گائیڈ کیا، میں نیچے سائڈ پہ 2 سرانے تکیے رکھ کے 2-3 دن سویا ہوں رات کو. لیکن بجائے یورین کی مقدار کم ہونے کے میرے یورین اور زیادہ آنا شروع ہو گیا ہے. تو پھر میں ان کے پاس جاتا ہوں، کہتے ہیں یار آج منگل ہے، آج پروفیسر سرفراز سیال صاحب نے آنا ہے جو وکٹوریہ ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، جنہوں نے آپ کا آپریٹ کیا تھا، کیونکہ ہمارے پاس وہی آتے ہیں بہاولپور سے. تو آپ کو ان سے چیک کرواتے ہیں. جب میں ان کے پاس جاتا ہوں، ڈاکٹر صاحب یہ میرا معاملہ ہے، تو وہ بھی یہی کہتے ہیں یار کوئی نہیں، 100 بندے میں 1 بندے پہ آ ہی جاتا ہے تو حل ہو جائے گا. 12-14 دن بعد میرے سٹیچز کھول دیتے ہیں. سٹیچز کھولنے کے بعد جب 15-16 دن گزرتے ہیں تو میں پھر جاتا ہوں، ڈاکٹر صاحب میرے پاس 2 تھیلی ہیں یورین کی، تو دونوں میں مقدار برابر آنا شروع ہو گئی ہے. میں تو بڑا پریشان ہوں، مجھے بتائیں کہ کیا حل ہے اس میں، کیوں آ رہا ہے؟ تو وہ مجھے ڈاکٹر حافظ نعیم صاحب بھی ملتے ہیں. تب مجھے کہتے ہیں یار تمہارے نا 2 ٹانکے ٹوٹ گئے اندر سے. حالانکہ کوئی میرا الٹرا ساؤنڈ نہیں کروایا 12-14 دن کے اندر، کوئی رپورٹ نہیں کروائی، لیکن انہوں نے کوئی آئیڈیا لگایا یا ان کو کوئی پتہ تھا پہلے ہی. تو آپ ایسا کریں کل آ جائیں، کل ہی وہ ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں بہاولپور والے، آپ کے اسٹنٹ ڈال دیتے ہیں تو اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا. میں پھر داخل ہو جاتا ہوں. جب میں داخل ہوتا ہوں تو بہاولپور والے آتے ہیں تو آ کے مجھے دیکھ کے کہتے ہیں یار آپ بہاولپور ہی آ جاؤ ہمارے پاس، وہاں پہ تو مشینیں بڑی ہیں، علاج بھی اچھا ہو جائے گا آپ کا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں. میں ان سے ہٹ کے ڈاکٹر حافظ نعیم صاحب کے پاس جاتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ کے جو پروفیسر صاحب مجھے اپنے پاس وکٹوریہ میں بہاولپور بلا رہے ہیں، وہاں تو مجھے جانتا بھی کوئی نہیں ہے،
हम कैसे जाएंगे वहाँ पे और कैसे बंदोबस्त हमारा होगा। तो डॉक्टर हाफिज़ नईम साहब जो सईद मेडिकेयर के ओनर भी हैं, वो मुझे कहते हैं यार परेशान ना हो, वहाँ पे मेरा भांजा हमजा भी है, वो भी डॉक्टर है, इनका जूनियर है, तो वो आपको ऐसे ही ले जाएगा जैसे मैं ही हूँ, तो बेफिक्र हो जाएं आप। मैं उसी दिन, जिस दिन मुझे टाइम दिया था उन्होंने, मेरा ख्याल जुमेरात का दिन था, मैं चला जाता हूँ वहाँ पे। तो वो जाते ही एक मेरा स्टंट डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी नाकाम कोशिश होती है। फिर वो कहते हैं 2 दिन बाद आपका चीरे वाला दोबारा ऑपरेट करेंगे, तब स्टंट डालेंगे। 2 दिन बाद, हफ्ते वाले दिन मेरा दोबारा वो चीरे वाला ऑपरेशन करते हैं, लेकिन तब भी नाकाम होता है, क्योंकि ये तो मुझे बाद में पता चला है। क्यों 2 बैग के साथ मैं ऑपरेशन रूम में जाता हूँ। जब बहावलपुर से मैं ऑपरेशन रूम से बाहर निकलता हूँ तो मेरे 3 बैग लगे होते हैं, 2 कमर में लगे होते हैं, एक तो पहले ड्रेन वाला, एक नया लग जाता है, एक फोलिस लगा होता है, 3 बैग के साथ। तो फिर मेरे अटेंडेंस को वहाँ पे किसी डॉक्टर ने बताया कि यार जो ये तीसरा बैग है ये लाइफ लाइन है। तो वजह पूछी कि क्या वजह है, कहते जी इसकी जो वेन कट गई थी पहले ऑपरेशन के दौरान, जिससे यूरन ड्रेन में आता था, तो वो यूरन कवर करने के लिए गुर्दे में एक तीसरी नाली लगा दी है, ये इसकी लाइफ लाइन है। दूसरे बैग तो उतर जाएंगे, लेकिन ये नाली तब तक नहीं उतरेगी जब तक वेन जुड़ नहीं जाएगी। खैर उन्होंने कहा जी 1 हफ्ते बाद चेक करवाएं आप, वहाँ पे करवा लें मियाँ चन्नू में भी, ये भी प्रोफेसर वहीं आते हैं और हाफिज़ नईम साहब भी वहीं होते हैं। मैं मियाँ चन्नू में 2-3 मरतबा चेक भी करवाया, इनको टांके भी मियाँ चन्नू वालों ने मेरे खोले हैं, सईद मेडिकेयर वालों ने। तो उसके बाद ज़ाहिर बात है फिर मैं कहाँ पे इन पे भरोसा करता, क्योंकि ये तो मुझे कह रहे थे कि कोई नहीं 6 महीने 8 महीने साल लग जाएगा, आप वज़न कम करो, ये ऐसा हो जाता है, यानी सीधी बात फिर भी नहीं ये मुझे बता रहे थे। तो मैंने घर वालों से मशवरा किया, परेशानी थी कि मुझे तो अब नहीं 6 महीने 8 महीने बर्दाश्त होगा ये वेन। फिर मैं मुल्तान जाता हूँ, मुल्तान में 2-4-6 डॉक्टरों से मैं मशवरा करता हूँ, वहाँ पे मेरे मुख्तलिफ अल्ट्रासाउंड MRI वगैरह मेरे पास सारी रिपोर्टें पड़ी हुई हैं, तो मैं करवाता हूँ। आखिर एक हॉस्पिटल से मुझे कहा जाता है जी हम ट्राई करते हैं, तो मेरा तीसरा ऑपरेट मुल्तान में होता है, लेकिन वो भी नाकाम होता है। वो भी सारा यही कहते हैं कि यार जो पीछे गलतियाँ हो चुकी हैं, जिन्होंने आपकी मियाँ चन्नू वालों ने वेन काटी थी, वो अपनी जगह पे हील हो चुकी है, ये टाइम से आप आ जाते। इसका टाइम होता है 8 दिन 10 दिन, वेन जो कटी थी वो कच्ची होती है, लेकिन जिस तरह ड्यूरेशन बढ़ती है, टाइम बाट हो गया आपका, वो वेन अपनी जगह पे पक्की हो गई है। तो हमने तो खोला था ऑपरेट, लेकिन वो हमें कोई रास्ता अंदर से मिला नहीं है। अंदर तो ऐसे हो गया जैसे वेनें नूडल्स बन चुकी हैं ना, एक गुच्छा टाइप चीज़ें हो गई थी, उलझनें बहुत ज़्यादा थी। तो वो मुझे कहते हैं जी आप 2 महीने कोई मेडिसिन खा लें, हमारी अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, कोई वाकशा करें, शायद वेनें कुछ सीधी हो जाए। मैं थोड़ा अरसा दवाई भी खाता हूँ, लेकिन फिर अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद पता चलता है, ऑपरेशन से पहले उनके बाद जब जाता हूँ, तो वो कहते हैं यार नहीं ये तो मामला हल नहीं हुआ आपका, जूं का तू ही है, तो बेहतर है कि आप SIUT कराची चले जाएं, वहाँ पे आपका इलाज हो सकता है। अगर आप अफोर्ड करते हैं तो लाहौर शेख ज़ायद में चले जाएं, क्योंकि कराची तो बहुत दूर था, हम लोग नहीं जा सकते थे, कोई रिश्तेदार भी नहीं था, लाहौर नज़दीक था, तो हम लाहौर चले जाते हैं। लाहौर जाने पे पता चलता है यार जो ये बैग बहावलपुर में लगाया हुआ है, तब तक ये ना बहुत ख़राब हो चुका था मेरा बैग। मेरा ज़ख़म तकरीबन 3-4 महीने हो गए थे, वो गल चुका था, बैग अंदर से पाइप लीक हो चुका था, वो यूरन मेरा बहुत निकलता था बाहर। मैं 2-4 टावल रखता था, बिस्तर ख़राब होता था, अगर मैं गाड़ी में भी लाहौर जा रहा था तो तब भी 5-6 टावल साथ होते थे। तो इस तरह करके मैंने अपना टाइम जो 2-3 महीने गुजारा था। तो फिर लाहौर जाके पता चला यार इससे ना अंदर इन्फेक्शन थोड़ा सा हो गया है, जो ये बहावलपुर वालों ने साइड पे पाइप लगाया, लग तो इधर भी सकता था, लेकिन इसकी असल वे पीछे कमर में गुर्दे के अंदर थी, ज़्यादा बेहतर था। उन्होंने फिर मेरे कमर में बैग लगा दिया यूरिन का, लाहौर वालों ने। फिर कुछ 6 हफ्ते का टाइम दिया, फिर मेरे कमर में भी हो गया, साइड में भी हो गया, साइड वाला उतर गया। तो कमर के बाद 6 हफ्ते बाद मैं दोबारा जाता हूँ, मुझे एडमिट कर लेते हैं शेख ज़ायद वाले। तो 30-32 दिन मैं वहाँ पे रहता हूँ, तो मुख्तलिफ टेस्ट कराते हैं, जो मेरे पास रिपोर्टें मौजूद हैं। तो टेस्ट करवाने के बाद वो कहते हैं यार गुर्दा तो आपका बड़ा एक्टिव है, लेकिन कोई वे नहीं मिल रहा। जो गलतियाँ सबसे पहले ऑपरेट वालों ने की हैं, मियाँ चन्नू वालों ने कर दी हैं, तो इस वजह से गुर्दा आपका निकालना पड़ेगा। अगर आप गुर्दा तो अच्छा है, यूरिन आ रहा है आपका, अगर आप नहीं निकलवाना चाहते तो ये बैग आप सारी ज़िंदगी भी लेके फिर सकते हैं अपने साथ, कमर वाला। तो देखें ये तो कोई मसले का हल नहीं था,
तो काफ़ी ट्राई करने के बाद, लेकिन तब तक इन्फेक्शन इतनी हो चुकी थी, गुर्दा भी मेरा काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया था। साल 6 महीने चल जाता इन्फेक्शन की वजह से, क्योंकि रिपोर्टों के अंदर इन्फेक्टेड आया हुआ है गुर्दा। तो गुर्दा फिर मेरा निकल गया। तो गुर्दा निकलने के बाद देखें, एक इंसान है, उसके जिस्म का एक हिस्सा निकलता है। अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, अल्लाह ताला ने 2 चीज़ें इसलिए बनाई होती हैं कि एक ख़राब हो जाए, दूसरे पे इंसान गुजारा कर सकता है। लेकिन अगर किसी वजह से निकले तो बंदे को दुख नहीं होता कि यार मेरी जान बच गई है। ये तो मियाँ चन्नू वाले अगर मुझे पहले बता देते, शुरू में बता देते, या 5-4 दिन बाद ही बता देते, या मेरे किसी रिश्तेदार को बता देते, या अटेंडेंस जो भी थे मेरे जानने वाले थे, इनको किसी को भी किसी भी वजह से बता देते, यार ये मसला था, अब स्टंट ला दें, हम लाहौर से ला देते, हम मुल्तान से ला देते, जहाँ से मिलता हम इनको ला देते, या हमें बता देते कि यार इसको आप अच्छी जगह पे ले जाएं। ये मुझे इतने धक्के ना खिलाते, कभी मैं बहावलपुर जा रहा हूँ तभी कह देते यार इसको कहीं ले जाएं आप, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अफोर्ड भी करता था, मैंने चला भी जाना था, लेकिन इन्होंने सारी चीज़ें छुपाई हैं मुझसे, ताकि ये मरीज़ को 8-10 महीने ऐसे ही चलता फिरता रहे, ये मर जाएगा, हमारी जान छूट जाएगी। तो अब मैंने जो आवाज़ उठाई है अपनी, जिस वजह से आप भी मेरे पास आए हैं, मेरी आवाज़ उठाने का एक ही मकसद था कि यार ये अवेयरनेस आए लोगों को कि इस तरह की गलतियां डॉक्टर हर बंदे से ना करे, क्योंकि बहुत सारे मियाँ चन्नों में बहुत सारे ऐसे घर हैं बेचारे जो अफोर्ड मेडिसिन नहीं कर सकते, वो इतना पैसा कहाँ से लगाएंगे। फिर जब हमने डॉक्टर साहब से रब्ता करने की हमने कोशिश की मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ज़रिए, नुमाइंदगान के ज़रिए, तो डॉक्टर साहब ऊपर से मुझे धमकियों पे आ गए हैं। धमकियां देते हैं जी, अपने वो जितने भी आपने नोटिस भेजे हैं, ये देखें मैंने, अगर आपका कोई कैमरा दिखा सके ये वाली चीज़ें, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा है जी आप पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जाएं, तो मैं पंजाब हेल्थ कमीशन का ये पेपर है मेरा, ठीक है जी, मैंने वहाँ पे भी अप्लाई किया था, लेकिन ये डॉक्टर माफिया इतना मजबूत है कि उन्होंने वहाँ पे भी पैसे लगा के ये करवा दिया कि टाइम बाट हो गया, ये 60 दिन का नोटिस होता है। अरे मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपके तवज्जो से कि 60 दिन तो उन लोगों के लिए है जो ऑपरेशन के बाद ठीक चल सकते थे। मैं तो 200-250 दिन हॉस्पिटल में रहा हूँ, घर में रहा हूँ, मेरे साथ मुसलसल कभी कमर में बैग था, कभी पीछे बैग था, मैं चल भी नहीं सकता था। मैं कैसे चला जाता, क्योंकि मैं एक फ़र्द वाहिद अपने घर का कफ़ील हूँ, भाई मेरा कोई नहीं है, वालिद साहब मेरे हार्ट पेशेंट हैं, मेरा कुछ जाने वाला भी नहीं था। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस पे भी एक अपने वकील के ज़रिए एक्शन लिया है कि सारी ये मैंने रिपोर्टें भी भेजी हैं इसके हेल्थ सेंटर में, और डॉक्टर साहब की जो धमकियां हमें मिल रही हैं उस वाले से मैंने आला काम को आगे एक वीडियो पैगाम भी भेजा था। अब मैंने रिटर्न दरख्वास्तें भी भेजी हैं, मैंने चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के नाम भेजी है, मुल्तान चीफ़ जस्टिस के नाम भेजी है, वज़ीर आला तक अपनी आवाज़ पहुंचाई है रिटर्न, ठीक है जी, सूबाई वज़ीर जो हमारे सेहत के हैं उन तक मैंने दरख्वास्तें कई मरतबा भेजी हैं, लेकिन अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मेरे पास प्लेटफॉर्म था कि मकामी थाना जो हमें सपोर्ट करता है, जो पुलिस हमारी मुहाफ़िज़ है, तो वहाँ पे भी मैंने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी मकामी थाने में भी, ठीक है जी, उन्होंने भी हमारी कोई बात नहीं सुनी। अब मैंने अपनी एप्लीकेशन DPO को मूव की है, लेकिन अभी 2-3 दिन हो गए मुझे कोई वहाँ से रिस्पांस नहीं आया। उम्मीद है सुबह तक या परसों तक अगर रिस्पांस आता है ठीक है, वरना मैं खुद पेश आऊँगा, क्योंकि मैंने अपने इंसाफ के लिए आगे तक जाना है। और आप ये देखें, एक तो इंसान चोरी करता है, क्योंकि चोरी वाली बात ही है सारी, जो मुझे धोखा देता है, जिसने मेरा उज़्व निकाला है, जिसने मुझे कत्ल करने की कोशिश की है, क्योंकि मैं थाने जाता हूँ यार, ये मेरे मिलता हूँ उनसे कि ये मेरे साथ मसला हुआ है, वो कहते हैं जी हम डॉक्टर साहब को बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे। मुझे ये एक बात बताएं, उंगली टूट जाए तो उसका पर्चा है, नाक की हड्डी टूट जाए उसका पर्चा है, मेरा तो गुर्दा निकाला है डॉक्टर साहब ने, तो मेरे ऊपर ये मेरी बात ही नहीं सुन रहे। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा। आप ये समझ रहे हैं कि डॉक्टर से जो गलती हुई, उन्होंने उस गलती को छुपाने की कोशिश की, अगर वो गलती ना छुपाते, आपको बता देते, तो आपका गुर्दा सेव हो सकता था। सर मेरा गुर्दा तो बिल्कुल एक्टिव था। देखिए उन्होंने पेट में अगर जो वेन काटी है मेरी, मुझे बता देते, मेरे अटेंडेंस को बता देते, उसी दिन बता देते ऑपरेशन रूम में, जो 3-4 घंटे का मेरा ऑपरेशन किया था इन्होंने, हम ला देते मुल्तान, कोई दूर तो नहीं था, चले मियाँ चन्नू में नहीं मिलती होगी, वो स्टैंड नहीं मिलता होगा। हर गलती का एक हल होता है, ठीक है जी। बहुत सारे ऑपरेशन में वेनें कटती होंगी, बहुत सारे मरीजों के साथ ऐसा मसला होता होगा, हर बड़े हॉस्पिटल में होता होगा, लेकिन तभी उनका हल भी होता होगा,
ठीक है जी, पैनल होते हैं उनके पास सारे। इन लोगों ने अगर मेरी वेन काट दी थी, इनके पास स्टंट होना चाहिए था। ये स्टंट ना होने की वजह से या ना डालने की वजह से, या ऐसी कोई इनके पास मशीन नहीं थी, ऐसा कोई कैमरा नहीं था, ये हमें बता देते, 2-4 दिन बाद बता देते, हम तब भाग जाते कहीं ना कहीं। पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे अच्छे और काबिल डॉक्टर बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने अभी मुझे इस हाल में वापस पहुंचा दिया कि मैं बड़ा एक्टिव हो के अपनी दुकान पे भी जाना शुरू हो गया हूँ, अपने बच्चों में भी हूँ, जो कि एक मुझे उम्मीद ख़त्म हो चुकी थी। जो लोग मियाँ चन्नू से मेरा पता करने आए थे शेख जायद में, वो आपको बता सकते हैं। वो जो एक शादी पे बंदा मिला, वो कह रहा था यार मैंने लाश देखी थी, आज जिंदा देख रहा हूँ। ऐसे लोग मेरे पास आए थे जो मुझे 6-6, 7-7 दिन तो ऑक्सीजन लगी रही है हॉस्पिटल के अंदर, इनकी गफलत की वजह से। ये बात बिल्कुल इनके ऊपर जाती है। देखें, ये सईद मेडिकेयर की स्टैम्प पैड है, ये मुझे सारा इन्होंने रेफ़र किया हुआ है। ये नीचे प्रोफेसर साहब बहावलपुर वालों की स्टैम्प है। अगर मेरा परेड सही किया था इन्होंने पहला, तो मुझे रेफ़र क्यों किया बहावलपुर में? सब बंदों को ये बताना चाह रहा हूँ, ये जो कह रहे हैं जी हमने तो इसका इलाज बेहतर किया था, ये अपनी मर्ज़ी से आगे गया, मुझे क्या शो, वो पार्क था जहाँ पे मैं गया था। ये उनकी रेफ़र वाली पर्ची है मेरे पास। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक ही वो कह सकते हैं डिमांड है कि आला सतह का एक बोर्ड तश्कील दिया जाए। मैं नहीं कहता हूँ कि मेरी बात कोई आप मान के आगे पहुँचा दें। आला सतह का डॉक्टरों का बोर्ड हो। अगर मियाँ चन्नू लेवल में बनाना चाहें तो मियाँ चन्नू लेवल में आप कोई शहर के मोअज़्ज़िज़ शख्सियत 2-3 डाल लें, कोई वकला हज़रात बैठा लें, कोई कारोबारी शख्सियत बैठा लें, कोई सहाफ़ी बैठा लें, कोई डॉक्टर बैठा लें, वो फ़ैसला कर दे। मियाँ चन्नू में सियासत बड़ी गर्म है, सियासी लोग आ जाएं। मियाँ चन्नू में अंजुमन ताजरान बड़ी एक मौसर किरदार अदा करती है, वो आ जाएं। लेकिन मैं ये देखता हूँ इस माफिया के अंदर कोई भी आवाज़ उठाने वाला नहीं है गरीब बंदे की, क्योंकि ये मुझे समझ नहीं आ रही। 1.5 महीने से एक चैनल पे मेरा प्रोग्राम बार बार चलाया जाता है। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ शहर के सहाफ़ी हज़रात अखबारों में मेरी ख़बर चला रहे हैं, तो ये शहर के जो ज़िंदा लोग हैं ये एक्टिव क्यों? क्योंकि मैं ज़िंदा ही कहूँगा ना, अब उनको क्या कह सकता हूँ, फिर ये गुस्सा कर जाते हैं बातों का। ये ज़िंदा लोग एक्टिव क्यों नहीं हो रहे मेरे इस मामले पर? क्यों नहीं वो हमको बैठाते और फैसला करते? मैं ये कहता हूँ कि अगर हम झूठे हैं, 50-50 लाख का अगवान रखें पंचायत के अंदर, लगाएं पंचायत, जो झूठा होगा उसके ऊपर लगाएं। और ये देखें, एक चोर है ऊपर से सीना जोर है। ये डॉक्टर साहब ने अपने वकील के ज़रिए हमें बहुत सारे लोगों को जो उस रैली में, उस जुलूस में, मियाँ चन्नू टी चौक से पूरा मन जो हमने वाक़ एक निकाली थी, उसमें जो लोग नुमायाँ थे या जिनके साथ उनकी कोई ज़ाती दुश्मनी होगी या जिनके वो हाथों लगे हुए हैं, उनकी ज़ाती दुश्मनियाँ होंगी, तो उन लोगों को मेरी वजह से इस अजियत का भी सामना करना पड़ रहा है। ये 1.5 करोड़ रुपए का उन्होंने हमें एक नोटिस भेजा है लीगल। इसमें उन्होंने एक छोटी सी तहरीर में सिर्फ एक ही बताता हूँ, लिखा है जी डॉक्टर साहब को ज़हनी ज़ियत और ज़हनी कोफत और पेशानी के मद में 50 लाख रुपया देना पड़ेगा। मैं ये कामे वाला से कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब आपको तो 1 महीने से 20 दिन से ज़हनी टेंशन होगी जब से मैं मैदान में निकला हूँ, जब से मैंने अपने इंसाफ के लिए अपील की है। मैं तो अपना इंसाफ मांग रहा हूँ कि डॉक्टर साहब मेरे इंसाफ से अगर आप परेशान हो जाते हैं तो जो 6 से 7 महीने मेरे बच्चे, मेरी बेगम, मेरा माँ बाप जिस अजियत से गुजरा होगा, क्या उसका अजाला कर सकते हैं आप तो 20 दिन की ज़ियत बर्दाश्त नहीं कर सकते। यूरन बैग के साथ दर की ठोकरें खा रहा था, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जा रहा था, यूरन मेरा लीक होता था, मेरे बिस्तरे कपड़े ख़राब होते थे, 24 घंटे यूरन लीक होता था। क्या उसकी ज़हनी ज़ियत कौन देगा? मेरे वालदैन के जो परेशानी आई थी उसकी अजाला कौन करेगा? ठीक है। दूसरा आपने कहा जी मेरी शोहरत को ख़राब हुआ है। अरे डॉक्टर साहब मेरी आप जान लेने पे आ गए हैं, अभी आपको शोहरत की पड़ी है। मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने को आ गई थी, अभी आप शोहरत पे रो रहे हैं सिर्फ। डॉक्टर साहब इन नोट्सों से मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं सच्चा हूँ। आप जिस प्लेटफार्म पे जाएंगे मैं उस प्लेटफार्म पे आपसे पहले पे मौजूद होऊंगा। मुझे सिर्फ इतना अल्लाह ताला पे यकीन है, आप पैसा लगाएंगे मैं अपनी आवाज़ उठाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं ज़िक्र कर देता हूँ इसके अंदर, क्योंकि मैं जमात इस्लामी का एक कारकुन हूँ और कारकुन होने के साथ साथ मैं एक रुकने जमात हूँ। ठीक है जी, रुकने जमात होने के साथ साथ मेरी जमात मेरे बैक पे खड़ी है। डॉक्टर साहब ने तो हमारी जमात पे भी लगा दिया जी जमात इस्लामी ऐसे कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे इस
चैनल्स को, जितनी मेरी ये चीज़ें हैं, मेरी जमात ने मंसूरे मंगवा ली हैं, मेरे पेपर इंशाल्लाह आगे वो ऑन करेंगे मेरा ये केस, क्योंकि डॉक्टर साहब के हाथ बहुत लंबे हैं, क्योंकि इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है। अब ये कह रहे हैं जी कुछ अरसे से जी हमारा माली नुकसान हुआ है। आज डॉक्टर साहब मैं आपको ये भी बता दूं, आपने जो माली नुकसान के मद में ये 1.5 करोड़ का मुझे लेटर भेजा है ना, इसका मतलब है कि आपको कुछ अरसे से 5-6 दिनों से 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ है, तो आपकी तो महीने की 30 करोड़ की आमदन है। तो 30 करोड़ के हिसाब से इनकम टैक्स कितना देते हैं हम, तो वहाँ पे भी अब जाएंगे। FBI में जाऊँगा कि डॉक्टर साहब के इस बयान का नोटिस लें, डॉक्टर साहब का ये चेक करें कि इनकी इनकम कितनी है और इनके टैक्सेस कितने हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ कितनी हैं, इनके FBR कितने बनते हैं। ये तो अब डॉक्टर साहब ही बताएंगे आवाम को। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमर साहब। आप बताइएगा कि आपने इंसाफ के हसूल के लिए कहाँ कहाँ और किस किस प्लेटफॉर्म पर आपने फरियाद की है? सर मैंने 2 से 3 मरतबा वज़ीर सेहत को दरख्वास्त भेजी, अख्तर मलिक साहब को। ठीक है जी। मैंने आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान को भेजी है। ठीक है। जो अब नए आर्मी चीफ आए हैं इनके नाम भी मैंने मूव करवा दी है। मैंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आला, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस मुल्तान बेंच, अपना डिप्टी कमिश्नर साहब को 2 मरतबा भेजी है, AC साहब को दूसरी मरतबा भेज दी है। तो मेरे मुख्तलिफ जितने भी CEO हेल्थ हैं, सूबाई महोत्सव है, वफाकी महोत्सव के अंदर भेजी है, सेल सहूलत कार्ड वालों को भेजी है, PMDC इनका इदारा है वहाँ पे भेजी है, PMC वालों को भेजी है। जहाँ जहाँ मुझे पता चलता है यार मेरी कोई बात सुन लेगा, मैंने वहाँ दरख्वास्तें भेजी हैं। लेकिन डॉक्टर साहब फिर मैं वही कहूँगा कि इनको आइडिया है कि कहाँ कहाँ हमारी सुनवाई हो सकती है, वहाँ ये हमसे पहले आगे जाके सेटलमेंट बना रहे हैं। एहतजाज भी किया आपने? जी मैंने एहतजाज किया है माशाल्लाह। और इसके बावजूद आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं जी, इसके बावजूद सुनवाई नहीं हुई और उल्टा जिन लोगों मेरे एहतजाज के साथ शामिल थे डॉक्टर साहब उनको भी धमकाना शुरू हो गया। हमारे साथ बेसिकली होता ऐसे है, एक वकील और एक डॉक्टर, ये 2 शोबे ऐसे हैं, डॉक्टर कभी भी नहीं चाहता कि उसका जो पेशेंट है वो एक्सपायर हो जाए, और वकील कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका क्लाइंट जो है वो केस हार जाए। तो ऐसा होता नहीं है बेसिकली। तो आपका ये इल्ज़ाम है कि उनकी वजह से उन्होंने गलती की, नाड़ उनसे आपकी जो वेन है वो कट गई, उन्होंने छुपाया उसको, ये उनकी गलती है। अगर वो इस चीज़ को ना छुपाते तो आपका जो गुर्दा है वो सेफ हो सकता था, आप एक गुर्दे से महरूम होने से बच सकते थे। लेकिन अब अगर वो इस गलती का इकरार कर लेते हैं तो क्या आप कंप्रोमाइज़ कर लेंगे उनके साथ? देखें, मैं आपके प्लेटफॉर्म पे ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने एक 8-9 रुकनी वफद भेजा था। मैंने क्या, मेरी जमात के मशवरे से अमीर ज़िला के हुक्म पे हमने एक मुख्तलिफ शहर की तंजीमात की शक्ल में भेजा था वहाँ पे कि डॉक्टर साहब आपकी गलती हुई है, आप माने, और वो अपने साथियों के अंदर और मेरे जो दोस्त गए थे उनके अंदर माने भी हैं। ठीक है जी। हमने यही एक मुतालबा एहतजाज के अंदर रखा था कि डॉक्टर साहब आप बड़ा दिल करें, हमारी वीडियोस देख लें जिसमें हमने ये दिया है कि आप बड़ा दिल करें, हॉस्पिटल से बाहर आएँ, आके अपनी गलती पे एक्सक्यूज़ करें, हम अपना ये पूरा मन जो मुजाहिरा है आप वापस ले लेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब बाहर नहीं आए। हमारा आज भी यही मुतालबा है कि डॉक्टर साहब आएँ, आप सब मीडिया दोस्तों को बुलाएं, मैं अंदर बैठूं, आप अपनी गलती का इकरार करें और मामला हम ख़त्म करें। क्योंकि डॉक्टर साहब तो इस बात पे आते ही नहीं है कि मैं गलती का इकरार क्यों करूं। नाज़रीन, आपने माजिद साहब की बातें सुनी हैं, मियाँ चन्नू की ये शहरी हैं, इनके तमाम तर इल्ज़ामात जो हैं ये आपके सामने हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये एक निजी हस्पताल में इलाज की गर्ज से गए और डॉक्टर्स की मुबैना गफलत की वजह से, उनकी लापरवाही की वजह से इनकी एक वेन कट गई। डॉक्टर्स ने इनके मुताबिक वो जो गलती थी उसको छुपाने की कोशिश की, वो गलती इनकी जो ज़िंदगी है वो दाव पे लग गई। 240 दिन इन्होंने हॉस्पिटल में गुजारे हैं। 240 दिन के बाद ये अल्लाह का करम है, कौन सी नेकी है जिनके काम आ गई है, और आज ये बिल्कुल तकरीबन तंदुरुस्त आपके सामने बैठे हैं। अल्लाह ताला की करम नवाजी है, उनकी रहमत है कि ये अब ठीक है, काफ़ी बेहतर है, चल फिर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं इदारों का किरदार बताना चाहता हूँ इस पूरे मामले के अंदर। देखिए, इन्होंने जो एप्लीकेशंस है इंसाफ के लिए जद्दोजहद की, सबसे पहले इन्होंने एहतजाज किए, सोशल मीडिया पे मामले को हाईलाइट किया, प्रिंट मीडिया पे हाईलाइट किया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इन्होंने हाईलाइट किया,
फिर इन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन दी इंसाफ की हसूल के लिए, इंसाफ के हसूल के लिए पुलिस को एप्लीकेशन दी, मुतलका थाने में एप्लीकेशन दी, डीपीओ साहब को एप्लीकेशन दी, इनके मुताबिक डिप्टी कमिश्नर को एप्लीकेशन दी, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को एप्लीकेशन गुजारी, हेल्थ मिनिस्ट्री को एप्लीकेशन गुजारी, ताहाल इनको इंसाफ नहीं मिल सका। लेकिन यहाँ पे मैं जो ख़ास बात आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जो है ये जो जितने भी हेल्थ के मामलात होते हैं इनको पंजाब हेल्थ केयर कमीशन इदारा जो है वो इनको फैसिलिटेट करता है। अब मैं यहाँ पर ये समझता हूँ कि जब इन्होंने उनको एप्लीकेशन शिकायत दर्ज करवा दी, उनका इनको रिस्पॉन्स भी वापस आया, तो उनको लाजमी तौर पर इंक्वायरी हेल्ड करनी चाहिए थी। अगर वो कसूरवार हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी और उनको करारवा के सज़ा मिलनी चाहिए थी। दूसरी जानिब आ जाते हैं कि हमारे मुआशरे में एक छोटा सा झगड़ा हो जाता है, उंगली टूट जाती है, उसका मेडिकल बन जाता है, उसका फौरी मुकदमा दर्ज हो जाता है, लेकिन इस बंदे की ज़िंदगी का मामला है, गुर्दा चला गया है, परमानेंट पेशेंट बन गए। ये 240 दिन की अजियत के बाद आज ये आपके सामने तंदुरुस्त बैठे और इंसाफ के लिए आवाज़ हक बुलंद कर रहे हैं। पुलिस को अकोमोडेट करना चाहिए, डीपीओ साहब को अकोमोडेट करना चाहिए। अगर डीपीओ साहब नहीं करते तो डिप्टी कमिश्नर खानेवाल को अकोमोडेट करना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर अगर इनको अकोमोडेट नहीं कर रहे तो फिर हेल्थ मिनिस्ट्री को अकोमोडेट करना चाहिए और इंसाफ के तकाजे पूरे करने चाहिए। अगर उनसे ये गफलत हुई है, अगर उन्होंने ये लापरवाही की है, अगर उन्होंने ये जुर्म किया है तो करारवा के सज़ा उनको मिलनी चाहिए। माजिद साहब ने जो बातें की हैं इनके ज़ाती इल्ज़ामात हैं। हॉस्पिटल की जो इंतज़ामिया अपना मौक़िफ़ सामने लेके आना चाहती है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमारा प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है, लेकिन आवाम को पता चलना चाहिए कि गलती किसकी है और इंसाफ कहाँ हुआ है। अगर उनकी गलती है तो करारवा के सज़ा होनी चाहिए, इनको इंसाफ मिलना इनका हक है जिसके लिए ये बाकायदा जद्दोजहद कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ मेरे सामने एक ये नोटिस पड़ा हुआ जो इनको वसूल हो चुका है, हरजाने का नोटिस है। भाई उस बंदे ने ज़िंदगी और मौत की कश्मकश का सामना किया है, 240 दिन हॉस्पिटल में गुजारे हैं, पता नहीं कितना ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया उसने। तो डॉक्टर साहब अगर आप जिंदा दिली का मुजाहरा कीजिए, आप जो भी डॉक्टर हॉस्पिटल की इंतज़ामिया मुझे सुन रही है, समात कर रही है, आप जिंदा दिली का मुजाहरा कीजिए, आला ज़रफ़ी का मुजाहरा कीजिए। आप अगर जानते हैं कि आपसे ये गलती सरजद हो गई है तो गलती करके मान लेना बहुत अच्छी बात है, ये बड़े बड़े ज़र्फ़ की बात होती है, लेकिन ना मानना और सीना जोरी करना ये गैर अखलाकी बात है। ये आपकी अखलाकियात का जो चट्ठा है वो खोल रही हैं ये सारी चीज़ें जो आपकी जानिब से इनके साथ की जा रही है। इसलिए नाज़रीन ये सारी बातें आपके सामने रखिए ताकि आप भी ये सारी चीज़ें सुने, आप भी ये सारी चीज़ें देखें कि इनके साथ किस तरह से ये जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है और किस तरह बेरहमी के साथ आप इनको जो है वो हरासा भी किया जा रहा है। मेरा प्लेटफॉर्म हॉस्पिटल इंतज़ामिया के लिए हाजिर है। अगर कोई अपना मौक़िफ़ सामने रखना चाहते हैं, ये इनके जो इल्ज़ामात हैं वो उसके जवाब में अगर वो कोई मौक़िफ़ अपना सामना रखना चाहते हैं तो उनके लिए ज़ियो न्यूज़ का प्लेटफॉर्म हाजिर है। इसहाक़ जावेद को इस प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अगले प्रोग्राम में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।